Okay. Okay, मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस सर। ओके। सर वो नोट के क्लास के शेष में वो आप ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ, वो जो काल का जो नोट था ना, एक्चुअली क्या हाँ हुआ, हाँ मेरा आईपैड में थोड़ा लैग हो रहा था ना, तो मैंने आईपैड को एक जगह पे दिया है मेरे एक दोस्त को। वो थोड़ा देख रहा है कि क्यों लैग हो रहा था, तो मुझे कल सुबह वो आईपैड मिल जाएगा, तो कल सुबह तुम लोगों को नोट भेज दूंगा मैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है ना इसमें? नो सर। नो सर। ठीक, ओके, कल सुबह भेज देंगे हम नोट, कल का जो था, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बिट लार्जर वर्जन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। व्हाई इट इज generalized version, you can say it's a generalized version. Why? Because in simple linear regression we only have one independent variable and one dependent variable. So now in that case we have more than one independent variable. Okay, so here we assume a multiple linear regression model, that is yi equals to x1i b1 beta 1 plus x2i beta 2 plus up to xki beta k. So here we have k number of regression coefficients, right? Beta 1 beta 2 up to beta k. So we have k number of regression coefficients. सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। Okay, okay, fine. So that is the setup. That is the setup. So if k equals to 1, that's a simple linear regression model. Okay, so we all know that part. Okay, so now from 1, the equation 1, we can also write that yi equals to beta naught. दिख रहा है ना ये equation? Beta naught Yes, sir. plus 1 x1i. So here we have added a beta naught part, that is the intercept part. Okay, so if intercept is equal to 0, then the equation 1 holds. Otherwise it is a generalized equation. Okay, so we assume the generalized equation that yi equals to beta naught plus beta 1 xi 1i. That's that generalized equation we are considering that, and from here we can obtain a matrix type format. What? That is the matrix type format. Look here, I equals to 1 to n, right? I belongs to 1. So we will be having a multivariate samples from a population, that is x, suppose x11 x12 x1k, that is for y1, x21 x22 x2k, that is for y22. So we have a whole multivariate sample set for our regression model. So now we can write in form of this matrix. So what is the matrix? First of all, you can have in the left hand side y, that is y1 y2 yn, that column matrix that denotes the y vector, and in the right hand side we have three matrices, right? The last one is epsilon, that is quite easy to understand, that is the error term, and for each and every n, that is y1 y2 yk up to yn, for every that for every line we have every error, epsilon 1 epsilon 2 up to epsilon k. So why it is sorry, it should be epsilon n. Okay, k लिखा है मैंने गलती से, ये n होगा, ठीक है? ये याद रखना, हाँ? Okay. Okay, fine. And we have another thing. We have a matrix called that is 1 x11 x12. In that case, 1 is for the intercept part. Okay, look. If you multiply with the first row and the first column, you are getting the first equation, that is y1 equals to beta naught plus beta 1 x11. In this way, you can easily generate a n number of lines. Okay, regression lines. So that's the thing, y equals to x beta plus epsilon. You have to remember that thing. From here we will proceed everything. We will proceed the LSE, we will proceed the unbiasedness, blue thing, everything we will be proceeding with the using this equation, y equals to x beta plus epsilon. So here we have all the things I have written here. Beta equals to the k vector,
or y equals to the y vector, epsilon equals to the epsilon vector, and this the number of rows and number of columns. So मैंने जब बोला कि एप्सिलॉन का जो मैंने गलत लिखा था उधर एप्सिलॉन के लिखा था वो गलत है, एप्सिलॉन एन होगा क्योंकि ओ एन नंबर ऑफ सैंपल्स हमने लिया है ना, तो इसलिए एप्सिलॉन एन होगा। और एक्स जो मैट्रिक्स है, ये जो एक्स मैट्रिक्स है, इसका नंबर ऑफ रोज होगा एन एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होगा के नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर एंड एन नंबर ऑफ रोज आर देयर। ओके, सो that's the setup. So now we have some assumptions for multiple linear regression. So what are the assumptions? So first assumption is quite simple, quite easy to understand. That is expectation of epsilon that is equals to 0. That is the first assumption. That is the same assumption as per the simple linear regression, right? Simple linear regression will be same assumption tha. Okay, next जो assumption है वो expectation of epsilon dash that is equal to sigma square. That means we are considering the variance of epsilon. That is previous slide दिखाएगा एक्सपेंड। देख लो एक बार। सर यहाँ x n क्रॉस k x के ऊपर जो लिखे ये ऑर्डर डिनोट कर रहा है ना? हाँ, तो x तो n क्रॉस k नहीं है, वो n cross k नहीं है, x n क्रॉस k प्लस 1 होगा। ओके ओ फाइन ये होगा n क्रॉस k प्लस 1 क्योंकि हियर वी आर हैविंग k प्लस 1 नंबर ऑफ रोज, राइट? सॉरी columns, k प्लस नंबर ऑफ k प्लस 1 नंबर ऑफ columns। बीटा k तक जाएगा, बीटा नॉट से बीटा k, तो बीटा भी हो बीटा को ये जाएगा। सेम ही होगा, k प्लस 1 होगा, राइट एंड बीटा से भी बीटा का नंबर ऑफ रोज कितना होगा, k प्लस 1 होगा। हाँ, k प्लस 1 तो वो तो सेम हो जाएगा, बात निकल जाएगा वो। हाँ, वो k प्लस 1 होगा, राइट। हाँ, इसको करेक्शन कर देंगे हम, ठीक है, भेजने के टाइम। तो एक्चुअली वो मैंने वो नो इंटरसेप्ट टर्म वाला लिया था, तो मैंने वो लिख दिया था, ठीक है। तो हाँ, राइट, that will be k plus 1. Okay, that will be k plus 1. Okay, fine. So now we are having expectation of epsilon dash that is equal to sigma square. That means the variance term, the variance of epsilon, that is sigma square. That's the same assumption as per the simple linear regression, same ही था। Next जो assumption है, that is a rank के ऊपर जो assumption, rank of x is the matrix। ये जो मैट्रिक्स था, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक होगा फुल के होगा। ओके फाइन, इधर जो मैंने लिखा है ना, जो मॉडल लिया है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। जिसने क्वेश्चन किया था ना वो k प्लस 1 होगा, तो एक्चुअली उस मॉडल में k प्लस 1 होगा क्योंकि उस मॉडल में मैंने बीटा नॉट लिया था। लेकिन अभी मैंने जो मॉडल एजम्पशन किया है y इक्वल्स टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन, तो इसके लिए ये जो इसमें जितना भी बीटा होगा, मतलब बीटा नॉट से बीटा k माइनस 1 तक अगर होगा, तो नंबर ऑफ regression coefficients is k. If the number of regression coefficients is k, then and the rank of the matrix x that should be k, मतलब इसका रैंक फुल होगा, ठीक है, k होगा। Okay, that is the one more assumption. Okay, and epsilon follows normal distribution and x is non-stochastic matrix। ये सब सेम ही, जो भी था सेम ही है, ठीक है। ओके फाइन, अभी हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट स्क्वायर में चले जाएंगे, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर का सेम फॉर्मुलेशन था जो भी पहले था कि द फंक्शन इज इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर मतलब क्या है, देखो अभी एप्सिलॉन मतलब क्या है, अभी जो रिग्रेशन मॉडल है वो है y इक्वल्स टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन। सो ध्यान से सुनना, इधर हम कुछ लिख नहीं रहे, ठीक है, तो क्योंकि लिखने में तो लैग होता है तो लिख नहीं रहे। ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन के जगह we are replacing epsilon by y minus x beta. How? Because y equals to x beta plus epsilon. We have the regression line y equals to x beta plus epsilon. So in that case, we are replacing epsilon by y minus x beta. So here we are having ये जो देखो y minus epsilon, sorry, y minus x beta transpose into y minus x beta. So if we multiply this thing, that becomes y dash y plus जो भी आया है इधर एक प्रीवियस नो स्लोप वाला फॉर्म एक बार फिर से दिखाएगा सर, एक सेकंड के लिए। कौन सा ऊपर वाला? यस सर। हाँ,
इफ वी देखो इधर अगर y इक्वल्स टू x बीटा है ना, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर कंसिडरिंग बीटा नॉट, ओके, सो बीटा नॉट प्लस x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 अप टू x k minus 1 beta k minus 1, so we are having k number of regression coefficients, right? बीटा नॉट से स्टार्ट होगा, बीटा k minus 1 तक खत्म होगा, ठीक है, मतलब इधर k denotes the number of सर columns. बीटा नोट से स्टार्ट होगा या बीटा 1 से स्टार्ट होगा? If you consider beta naught as a beta intercept parameter, beta naught अगर लोगे तुम तो ये जो पहला वाला था ना, ये पहला वाला हो रहा है. If you don't consider beta naught, then the regression line is this: y equals to x beta plus epsilon, right? इसमें कोई intercept parameter नहीं है, ओके, right? तो आप मतलब बीटा नोट से लेके बीटा k minus 1 तक जा रहे हैं अगर होगा तो ठीक है, बट इन दैट केस y इक्वल्स टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन का मतलब है कि इसमें तुम्हारा देखो जो बीटा है वो रिग्रेशन पैरामीटर है, और रिग्रेशन पैरामीटर का जितना नंबर ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर होगा वही हमारा k है, क्योंकि नंबर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जितना होगा वही हमारा k है, यस सर, ओके राइट? ओके, सो नाउ कहां पर थे हम लोग? ओएलएक्स कर रहे थे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कर रहे थे ना, तो लीस्ट स्क्वायर में क्या क्या था, सेम जो भी था सिंपल लिनियर इक्वेशन में सेम चीज कर रहे, जस्ट मैंने जो बॉक्स करके जो चीज लिखा है वो उसमें ध्यान दो, एक्स बीटा ट्रांसपोज इनटू एक्स बीटा, तो कुछ अगर ट्रांसपोज ले रहा है एक्स बीटा का तो हो जाएगा बीटा डैश एक्स डैश, राइट? बीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, ये याद रखना. इसी को यूज करके हम लोग इधर लिखा है बीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज इनटू बी, ठीक है? ये जो टर्म लिखा है हम लोगों ने तो उसी को यूज करके लिखा है. तो बाय द वे ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है. हाँ, इसको यूज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू बीटा. सो इफ वी डिफरेंशिएट the sum of squares of error term with respect to beta, so the first term y dash y, that will be 0, and the next term that is beta dash xb. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है there are two beta, so beta square. ऐसा तुम लोग दिमाग में समझ सकते हो, ठीक है? तो बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बीटा. so that's why we are writing x 2 into x transpose into x into beta, and the last term will be 2x transpose y, because there is a beta and that is 1, that derivative is 1. Okay, so here actually we are derivating with respect to a vector, right? With respect to a vector beta, so transpose का जो भी डेरिवेटिव होगा विदाउट ट्रांसपोज का सेम डेरिवेटिव होगा, ठीक है? कभी कभी ये पूछ सकते हो कि ट्रांसपोज और विदाउट ट्रांसपोज दोनों का डेरिवेटिव सेम होगा क्या? हाँ, सेम ही हो रहा है इधर. ओके, सो इफ वी डिफरेंशिएट कैसे किए वो सब थोड़ा बता दीजिए. बताओ फिर से. वो सर कैसे बीटा डैश और बीटा है ना, हम तो डिफरेंशिएट बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो So और दोनों suppose we have, हाँ सुनो, suppose we have A transpose A, okay, A transpose A का मतलब क्या है? summation AI square, A1 square plus A2 square plus up to AN square, right? So if you derivative with पेन respect से to लिख नहीं पाएंगे क्या? मैंने इस ज्वाइन किया ना दूसरी जगह से, तो दूसरी जगह से ज्वाइन किया ना, वो आईपैड मैंने दे दिया क्योंकि वो कल इतना लैग हो रहा था, तुम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो दे दिया आईपैड. तो अभी अच्छा, आज आईपैड नहीं है. आईपैड से नहीं ज्वाइन किया ना. पेन का और सिंबल से भी आप लिख सकते हो पीडीएफ में. ये काम नहीं कर रहा, देखो, कैन नॉट लोड फॉर दिस आइटम, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है. रुको एक सेकंड. सर पीडीएफ को एडिट, वहाँ पे पीडीएफ पे पेन से लिखने का ऑप्शन आता है उसमें एडिट करने का. हाँ, होता है ना. यस सर, पीडीएफ को किसी भी एप्लीकेशन से एडोब से खोलने पे आता है उसमें एडिट करने का, और वो इस पता नहीं इंस्टॉल नहीं किया इधर. पीडीएफ वाले स्क्रीन को शेयर कर दीजिए. ओके, काम करते हैं.
नहीं, बहुत उसमें लैग हो रहा है बहुत। क्या होता है ना इसमें, पीडीएफ में ना, क्या होता है उसमें थोड़ा लैग हो रहा है, समझ रहे हो? कि मैंने क्या किया ना, वन ऐप शेयर किया है, ठीक है? तो इसको शेयर करने के बाद हाँ, अभी इसमें आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो देखो, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, ये जो पार्ट, इसमें ये तो क्लियर हो गया। अभी तुम लोग डेरिवेटिव की बात कर रहे थे ना, तो दैट पार्ट, ये जो पार्ट डेरिवेटिव ऐसे आया है, क्यों आ रहा है ऐसा ना? तो क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंसीडरिंग समेशन एक्स डैश एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? सॉरी, समेशन नहीं, एक्स डैश एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एक्स मतलब डैश है सर, समेशन एक्स डैश के एक्स लीजिए। एक्स डैश के एक्स। यस व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट। यस सर। ओके, वो भी लिख सकते हो, बट मोर सिंप्लीफाई, इफ यू तुम अगर तुम बोल रहे हो ना कि एक्स डैश एक्स जो है, इसकी जगह तुम के पुट कर रहे हो ना, ऐसे करके कर रहे हो, वो एक मैट्रिक्स है ना राइट? सर, तो हाँ, तो इसके रेस्पेक्ट में वो जो टर्म है, वो जो टर्म है, वो टर्म कांस्टेंट हो रहा है, सर राइट? वो वाला पहले बताइए, तो वो भी नहीं समझ में आया। 2 बीटा डैश एक्स डैश वाई कैसे आया? तो ये वाला टर्म ना, हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें तो बीटा डैश है ना, इसी भी डेरिवेटिव हो रहा है, तो एक्स डैश वाई इसको ले लो, नहीं, ये रह जाएगा। वो सर मल्टीप्लाई करके कैसे निकला? तुम लोग मल्टीप्लाई। ये वाला पार्ट पे तो लीनियर अलजेब्रा में था ना, ये सब चीजें। यस सर, हम कर रहे हैं, तो उसमें ये जानना चाह रहे हैं बीटा डैश एक्स डैश वाई इस वो सेम है वाई डैश एक्स बीटा के। हाँ, इसको अगर फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग बीटा डैश एक्स डैश वाई, इसको बीटा से डेरिवेटिव करके बताओ क्या हो रहा है। देखो, ये तो लीनियर अलजेब्रा का प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें, ये था नहीं ना सर, लीनियर वो अलजेब्रा में, तुम लोग किए थे ना ये सब? नहीं तो हम लोग क्या लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करें क्या अभी? बताओ। ए, तुम लोग गेट दे रहे हो, तुम लोग लीनियर अलजेब्रा का तुम्हारा पार्ट है ना गेट पे। सर वो पता है, वो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, मतलब यहाँ हम हम जानना चाह रहे थे सर, बीटा डैश एक्स डैश वाई सेम एज वाई डैश एक्स बीटा और डिफरेंट? बीटा डैश एक्स डैश वाई इज सेम है वाई डैश एक्स बीटा, और इज इट वाई डिफरेंट? डैश एक्स बीटा, वाई डैश एक्स बीटा, सेम है, तो उसका ट्रांसपोज आता है ना दोनों ये। स्केलर है। हाँ, हाँ, उसका ट्रांसपोज लेके तो वो आता है, वाई डैश एक्स सेम आ बीटा का जाएगा। ट्रांसपोज अगर लोगे, वाई डैश एक्स बीटा का ट्रांसपोज अगर तुम लोगे, तो ही तो ये बीटा डैश एक्स डैश वाई आएगा। नहीं आ रहा है उसी क्या? को फिर डबल, उसी को ट्वाइस लिखे ना। ठीक है सर। तो इसमें थोड़ा एक चीज देख लो, ये जो टर्म है ना बीटा डैश एक्स डैश वाई, मुझे इस टर्म को डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है? तो वो जो टर्म होगा, बीटा वाला जो टर्म है, वो तो निकल जाएगा, क्योंकि बाकी जो टर्म है वो तो कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम एक्स डैश वाई ले रहे हैं। तुम अगर नेक्स्ट वाला में जाओगे, नेक्स्ट जो टर्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज वी आर कंसीडरिंग द सेम फंक्शन, कहा गया, हाँ, इसे कोई देख लेते हैं एक बार, कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग
ds beta by d beta that is equals to 2 x dash x beta minus 2 x dash y। इसको हम अगर फिर से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज ले लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो सेकेंड टर्म है ये निकल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म में जो बीटा टर्म है ये तो रिमूव हो जाएगा, और ये कौन सा एक्स डैश एक्स, राइट। और ये जो मुझे भी ये बोलना चाहिए, ये वाला आंसर देना चाहिए कि ये जो टर्म है बीटा डैश एक्स बीटा, इसको हम लिख सकते हैं एस बीटा ना, फॉर एग्जांपल अल्फा डैश a alpha, we can write it as this alpha dash a alpha, and if we derivative with respect to alpha that will become alpha a, right? So 2 alpha a, alpha a नहीं तो a alpha, 2 हाँ alpha 2 होगा पहले, 2 a alpha होगा। क्या मैंने गलत बोला क्या? 2 a alpha नहीं होगा? प्रॉपर्टी बताया ना, अच्छा, अल्फा अगर ए कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है तो 2a हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी क्या था मुझे भी याद नहीं है, प्रॉपर्टी उसका वो उसका जो प्रॉपर्टी है ना अगर मुझे एक्स भी याद डैश नहीं है क्या था उसका प्रॉपर्टी। एक्स डैश ए एक्स टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो टू हाँ टू टाइम्स मैट्रिक्स जो है ए इंटू एक्स हो जाएगा, अगर ए जो आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज into जीरो हो x, जाएगा। 2ax, हाँ 2ax होगा ना, हाँ सिमेट्री sir. मैट्रिक्स तो ये है ही, हाँ एक्स डैश एक्स सिमेट्री यहाँ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी तो सिमेट्रिक होल्ड है। करेगा ही है, हाँ हाँ वही तो x डैश x इधर सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसका और भी 2-3 प्रॉपर्टी है, ये सब लीनियर अलजेब्रा था, मुझे भी उतना याद नहीं है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है। तुम लोग को ये थोड़ा देख लो, लीनियर अलजेब्रा चाहिए इसमें, लीनियर अलजेब्रा छोड़ के मल्टीपल लीनियर इक्वेशन नहीं होगा इस जगह पे, बहुत जगह फंस जाएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, मूव ऑन करते इसमें, बाद में अगर चाहिए होगा फिर से हम चेक करेंगे, लीनियर अलजेब्रा के सब पोर्शन करेंगे बाद में, ठीक है। ओके, तो इफ by the way the thing is कि we are derivating with respect to beta and we are getting the OLAC of b, that is the b equals to that term. Look, if we are derivating with respect to beta and equal to 0, then we are getting b equals to x dash x, उसका इनवर्स x dash y। how? ये पहला इधर आ जाओ, ये जो लाइन है इस लाइन पे हम को क्या आ रहा है कि x dash x बीटा है that is equals to x dash y, और उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं x dash x को उस साइड लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है कि दोनों साइड में हम x dash x इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उधर ऐसे आ रहा है वाला टर्म, तो दैट इज द थिंग। सर की आपकी आवाज लैग करती है। था ठीक है, एक्स स्क्वायर करके ये जो इनवर्स होगा उसको कैलकुलेट करके उसका बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बी का वैल्यू आएगा एक कॉलम मैट्रिक्स का फॉर्म में, दैट बी शुड बी अ कॉलम मैट्रिक्स। सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो, यस सर। ओके फाइन। बीच में सर लैग किया एंड सेकेंड ओके अगर बताओ फिर से कौन सी जगह पे लग गया, समझ में आया कि नहीं? बताओ फिर से। यस सर, आ गया। फाइन, तुम लोग देखो, जो भी लीनियर अलजेब्रा पार्ट है ना वो सब मुझे भी उतना याद नहीं है, ठीक है। देखना पड़ेगा कौन सा यूज हो रहा है इधर। मैंने जो किया है कि एकदम सिंपल से मैंने नोट एक तुम लोगों के लिए क्लियर कर लिया, क्योंकि गेट में जो भी आता है एकदम इस जगह पे से जो भी सिर्फ गेट में नहीं, मैंने 2-3 जगह पे देखा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से क्वेश्चन आया, गेट में तो बहुत कम क्वेश्चन आया है, 2-3 जगह पे, जैसे आरबीआई में आता है, ठीक है। आरबीआई के जो सब्जेक्टिव पार्ट है आईएएस में भी आया है, तो वो सब जगह पे मैंने देखा था क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसी से बेसिस से मैंने इस तरह थोड़ा नोट को उसी हिसाब से बना लिया है
कि क्योंकि अगर आ भी गया ना तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज लैग कर रहा है इग्नोर द सर। linear algebra part. हेलो, वी कांट इग्नोर द linear algebra part. समझ रहे हो? यस सर। हाँ, फाइन। तो बाय द वे, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो था दैट इज द पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। सो व्हाट दैट इज सर आपका वॉइस बहुत लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, 5 मिनट से। स्टार्टिंग में सही था, लास्ट 5 मिनट से बहुत लैग कर रहा है। ओके ओके ओके, रुको एक सेकेंड, फिर से स्टॉप कर रहे थे। देखो ये अभी जो ठीक है। बता रहे थे, ये जीरो इंटरसेप्ट पे बता रहे थे ना, ये डबल डेरिवेटिव जीरो हाँ इंटरसेप्ट बस, वाला था ना। हाँ ये डबल डेरिवेटिव जो आया जीरो इंटरसेप्ट पे लाए ना। हाँ, जीरो इंटरसेप्ट में। इंटरसेप्ट में भी तो यही आएगा ना। क्या आएगा बताओ? सेम। डबल डेरिवेटिव का क्या आ रहा है कि 2 इंटू एक्स आ रहा है ना, ये वाला टर्म। यस सर। तो ये जो टर्म है एक्स, इसमें एक्स मैट्रिक्स जो है वो फुल लाइन मैट्रिक्स है, तो उसका एक्स ये होगा पॉजिटिव डेफिनेट। ये भी कोई एक प्रॉपर्टी है लीनियर अलजेब्रा में, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसको पॉजिटिव डेफिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट है ये वाला टर्म, ठीक है। टू छोड़ दो, टू कांस्टेंट है, उसको बात दो, उसको छोड़ो, एक्स जो है वो वाला टर्म, ठीक है। साउंड आ रहा है ना? यस सर। Okay, fine. The main thing is in case x is, that's the very important thing. If x is a not full rank matrix, तो देख लो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये लोग तो घुमा पेचा के तो क्वेश्चन करेगा ना, तो हम लोगों को इससे इंपॉर्टेंट इसी में हम लोगों को घुसना है कि whenever we are having a non full rank matrix, okay, then what is B? Then B is this. Okay. The first term is same and there is another term I minus x dash x inverse, that is G inverse. G inverse x dash x into W, while W is a vector. Okay. And that is the thing. It's not proof nahi ja rahe, but the thing is that we have to find the G inverse of x dash x. तो पहला जो था देख लो क्या था, x dash x का इनवर्स, तो नॉर्मल जो इनवर्स है उसका इनवर्स x dash y। when we are required this, for example, suppose we are having a x such that x dash x इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है, we can't have this inverse term x dash x inverse does not exist, right? Clear? क्या am I clear? हेलो, यस सर। यस क्लियर। सर। वो साउंड सर चली गई थी आपकी। आवाज बहुत लैग कर रहा है, ठीक है। आवाज बहुत लेक्चर है ना, रुको एक सेकंड, हम मेरा घर का पोजीशन चेंज करता है एक बार, ठीक है। ओके फाइन। ओके, देखो, whenever we are having a x dash x such that the determinant of x dash x equals to 0, जब 0 होगा x dash x का वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू, in that case we can't have the inverse of this. Now it is clear?
क्या बोलना चाह रहे हैं हम? यस 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 राइट. सो इन दैट केस वी कांट हैव अ बी, राइट. ये जो बी का हम निकाल रहे थे ना, बीटा हैट, तो बीटा तो नहीं निकलेगा ना उस टाइम, राइट. सो ये सब जो केस होता है जब नॉन नॉन उसका मतलब फुल लेंथ जब नहीं होता है, तो इस टाइम हम लोगों को क्या करना है, जी इनवर्स निकाल लेना है. समझे? यस बिकॉज जी इनवर्स का ऐसा ही फॉर्मुलेशन था, जब तक हम लोग को इनवर्स में और डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा था तब तक इनवर्स में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था. जब भी जीरो आ गया डिटर्मिनेंट, उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, जी इनवर्स निकल रहे थे, है ना. तो इन दैट केस क्या करेगा तो बताना मुझे, ठीक है. इन दैट केस नाउ वी आर हैविंग अ न्यू formula for b for finding the regression, the estimation of the regression coefficients, right. So that ये अच्छे से याद रखना, ये काम पे आएगा अभी, ठीक है. Okay, so now there are some properties for g inverse. These are some properties. First one is that h dash x into h dash x, उसका g inverse into h dash x, इसका मतलब h dash x ही होगा, ठीक है. ये सिंपल है, जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ये तीनों फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद ये दूसरा में जो होगा ये पार्ट यूनिट होगा, और तीसरा में जो होगा ये पहला वाला पार्ट यूनिट हो जाएगा, आई हो जाएगा. ओके, आई मैट्रिक्स बन जाएगा. तो इसके वजह से हम लोगों क्या क्या कर रहे हैं कि ये तीनों हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है. इसीलिए हम लोग क्या किया, ये 3-4 प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है. ये याद रखना, ठीक है, ये बाद में काम आएगा, ठीक है. समझ गए? सर वो तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से. हाँ ठीक है, ओके फाइन. चलो अभी एक चीज देख लेते हैं, एक दो थ्योरम अभी देखेंगे, ठीक है. दो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, दो थ्योरम है, ठीक है. फर्स्ट थ्योरम इज y hat is equals to xb, that is the empirical predictor of y. y का predictor क्या है, y hat, that is equals to x into b. b is the क्या है, b is the beta hat, right. So when we are having b, that is beta hat, we can have y hat, right. So y hat is the predictor of y. So in that case we are having the same value from the solution of this. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से जो सॉल्यूशन आएगा उसका जो y हैट का वैल्यू होगा, और ये जो एम्पिरिकल प्रेडिक्टर जो है y हैट x इक्वल टू xb, ये दोनों सेम होगा, ठीक है. ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ ऐड करके रखा है, तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोग बहुत इसको आई थिंक अच्छे से देख लेना चाहिए. देख सकते हो तुम लोग, जस्ट कुछ नहीं, मैंने मैट्रिक्स को इधर उधर करके लिखा है तो आ जाता है, ठीक है. और जो b इक्वल्स टू पहला जो मैट्रिक्स लिया, जो फॉर्मूला लिया b का फॉर्मूला, उसको यूज करके उसके बाद x से मल्टीप्लाई किया है. x के मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ऊपर मैंने 4, 5, 6 ये तीनों फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके मैंने दिखा दिया है कि ये जो xb का वैल्यू निकल रहा है, ये it is independent of w. w is the arbitrary value. that arbitrary value का मतलब क्या है कि वो w से इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो किसी डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये सेम वैल्यू होगा, ठीक है. जस्ट क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसलिए वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक ही वैल्यू होना चाहिए. तो जस्ट ये है, तो ये प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट याद रखना कि ये जो इक्वेशन है x डैश x b इक्वल्स टू x डैश y, ये इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं. जैसा कि तुम लोग याद करो कि लीनियर मॉडल में गॉस मार्कov थ्योरम में भी सेम इक्वेशन था एक, राइट. सेम इक्वेशन था गॉस मार्कov थ्योरम में, याद है ना क्या? हेलो, यस लीनियर सर. मॉडल याद है? ओके फाइन, ठीक है. चलो अभी दूसरा जो थ्योरम है, उस थ्योरम में ये जो एस बीटा जो फंक्शन है, एस बीटा फंक्शन क्या था, वो समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर वाला फंक्शन, ठीक है. उसी को हम लिखा है कैसे, देखो, उसी को एक्सप्रेस किया है मैंने y माइनस एक्स बी प्लस एक्स बी माइनस बीटा. तो एक्चुअली क्या किया मैंने, x इंटू बी इसको प्लस करके माइनस किया है, माइनस एक्स बी प्लस एक्स बी ऐसा लिखा है. बाकी तो y माइनस एक्स बीटा तो था ही उसमें, ठीक है. तो अब इसको मैंने क्या किया है, उसको अलग से मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये जो टर्म है, ये y माइनस एक्स बी, इधर y माइनस एक्स बी, तो ये दोनों टर्म इधर आ गया y माइनस एक्स बी ट्रांसपोज इंटू वाई माइनस एक्स बी, दिख रहा है. सेकेंड वाला जो टर्म था x इंटू बी माइनस बीटा, और इधर जो टर्म है x इंटू बी माइनस बीटा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद
ये जो पहला क्या होगा, बी माइनस बीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, उसके बाद एक्स बी, बी माइनस बीटा। ओके, ये दोनों क्लियर है? बताओ बताओ। यस सर। ओके, एंड जो लास्ट टर्म है ये है लास्ट वाला टर्म, ठीक है। उसमें क्या है, दो टर्म है ऐसा, ठीक है। अभी जो ये लास्ट वाला टर्म है ना, ये टर्म जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? लास्ट वाला टर्म में जो एक्स डैश वाई इंटू उसको मल्टीप्लाई एक्स डैश के साथ वाई माइनस एक्स बी को मल्टीप्लाई कर दिया है, और आ गया है एक्स डैश वाई माइनस एक्स डैश एक्स बीटा बिट बी, एंड वी हैव द इक्वेशन। मैंने जो 2 मिनट पहले जो इक्वेशन बताया कि ये होल्ड करते हैं एक्स डैश एक्स बीटा बी इक्वल्स टू एक्स डैश वाई, तो इसको पुट करने के बाद ये जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दोनों टर्म बैठ गया और दूसरा वाला टर्म जो है वो जीरो हो गया। ओके फाइन, एंड now we can have that term is greater than this. Okay, so look, ये जो टर्म है, ये जो सेकेंड वाला टर्म है, that term is greater than zero. That term is greater than zero. Okay, so why it is greater than zero? ये मैंने गलती से लिख दिया लेस देन इक्वल टू जीरो लिख दिया है, ये होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा? देखो आगे क्या है, बी माइनस बीटा ट्रांसपोज और एक्स डैश एक्स, ये एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स क्या है, एक्स तो हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होगा ना, एक्स का वैल्यू, तो वो तो न्यूमेरिकल टर्म में आ जाएगा, मतलब एक ही सिंगल वैल्यू आएगा। और बी माइनस बीटा और बी माइनस बीटा ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, बी माइनस बीटा होल स्क्वायर। राइट, ओके फाइन। सो इन दैट केस दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो वी आर हैविंग एक्स डैश एक्स तो मैट्रिक्स है ना सर? हाँ, एक्स डैश एक्स तो मैट्रिक्स है, तुम तो उसका वैल्यू पुट करोगे ना, वो तो गिवन होगा। तो जब तुम उसका वैल्यू तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा? स्क्वायर नहीं होगा, उसका वैल्यू वो नहीं, बी बीटा डैश ट्रांसपोज इनटू बी माइनस बीटा, वो होगा स्क्वायर। हाँ, वो बी कैसे माइनस स्क्वायर हो जाएगा? बी माइनस बीटा ट्रांसपोज इंटू बी माइनस बीटा, ये टर्म स्क्वायर तो हो जाएगा ना, मतलब समेशन बी माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे सर? ओके फाइन, रुको देखो, ये तो वेक्टर है ना, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? रुको दिखाते हैं। वेक्टर मैट्रिक्स और वेक्टर का मल्टीप्लाई है। देखो बी माइनस बीटा ट्रांसपोज, तो अभी इसमें क्या है, अभी इसमें नहीं सपोज सर, बीच में मैट्रिक्स है ना पहले, ये तो हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। ये जो बीच में मैट्रिक्स तो होगा, हाँ, ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, राइट। और जब तुम इसका वैल्यू निकालोगे ना, ये सिंगुलर वैल्यू आएगा। मतलब इसका सिंपल मतलब है, इसका जो मैट्रिक्स होगा ना, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तीनों मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करोगे, ये जो है, ये तो पहला जो बी माइनस बीटा, इसका नंबर ऑफ रोज क्या कितना है, नंबर ऑफ रोज सपोज के है, 1 है, यहाँ तो 1 होगा ना, सॉरी 1 होगा, 1 क्रॉस नंबर के का ऑफ मैट्रिक्स है ना। हाँ 1 होगा, और लास्ट वाला टर्म जो होगा वो भी 1 होगा, मतलब उसका कलम, नंबर ऑफ कलम। तो ये जो टोटल होगा ना, ये टोटल आएगा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा। हाँ, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, इसका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, जब तुम उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तुम या अच्छे से दिमाग में सोचो कि जब वो मल्टीप्लाई होगा, जो बी माइनस बीटा टर्म स्क्वायर होके वो एक्सपेक्ट के साथ ऐड होगा वो, ओके ओके। मतलब रो वाइज जब मल्टीप्लाई करोगे तुम, रो वाइज कलम वाइज एक एक करके सिंगल वैल्यूज में, उसमें तुम सोचो ना, एक सिंपल मैट्रिक्स ले लो ना, a माइनस बी इंटू 1 1 1 हाँ 1, हो गया है, इसका ऑर्डर ही 1 क्रॉस 1 का है। हाँ ऑलरेडी तो 1 को कांस्टेंट ही स्केलर है। हाँ, तो वो तो फॉर्मेशन बन ही जाएगा। तो इसीलिए इसी वजह से ये इस जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म में तुमको स्क्वायर मिलेगा, जितना भी टर्म्स होगा, ईच एंड एवरी टर्म हैज अ स्क्वायर टर्म, राइट। समझ गए ना? ओके सर। Okay, so for that case, now we are having this term y minus xb transpose into y minus xb. तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं पूरा एकदम ऐसे करके, हम लोग ये वाला टर्म आ रहा है y dash y into y hat dash
into y hat. So what is y hat? Y hat is x into beta hat. And what is y? Y is x beta plus epsilon. ये तुम लोग याद रखना, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसी के वजह से, मतलब ये इसको एक हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में डाला है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो एस बी है, एस बीटा है, इसका मतलब था समेशन एप्सिलॉन ए स्क्वायर था, ठीक है। अभी तुम लोग ये सोचो थोड़ा, ये भी समेशन एप्सिलॉन ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जस्ट एक्सप्रेशन है, ये इसीलिए मैंने इसको डाला है कि याद रखना है ये चीज, कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा ऑप्शन में ये एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हाँ फिर से देखो, फिर से हमने एक लिया है जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन में y hat equals to xb where b equals to beta hat. Okay, b is the right. Okay, now we can write, in place of b we can write this, b का estimate यही है h dash x inverse x dash y. तो now we are writing it is equals to hy. What is h? H equals to x into x dash x inverse x dash. It is normal inverse, not g inverse. Okay, ये normal inverse है, g inverse नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो h है, h का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। ये जो h होगा, ये h होना चाहिए सिमेट्रिक होगा, ये आइडेम्पोटेंट होगा, और इसका जो ट्रेस होगा वो भी देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ h that is equals to trace of this x into x dash x inverse x dash. So now we can write, क्या लिख सकते हैं देखो, इसको चेंज करो, ठीक है। मतलब कैसे है, x dash inverse को ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, बी ए, राइट, वो लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके घुमा सकते हैं इसको एक एक टर्म करके, राइट। सर तो उसी को यूज किया इधर, मतलब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको घुमा दिया है, उसको यूज किया है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रेस ऑफ एच जो आ जाएगा, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये जो इसका एच, जो सर एच आई एक ही लग रहा है, मतलब एक्स डैश एक्स से जो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो उसको हम ओपन करेंगे तो वो आई के इक्वल ही आ जाएगा, आई आ जाएगा, ये राइट, वो आई आ जाएगा। हाँ, मैंने इसको एक्स्ट्रा लिख दिया है ये लाइन, फिर भी कैलकुलेशन कर रहा था उस टाइम, लेकिन आई आ जाएगा ना, राइट, ठीक ही बोला तुमने, राइट। तो क्या होगा, क्या इधर देखो, इधर एक चीज है कि उधर जो ट्रेस होगा, ट्रेस का वैल्यू के होगा, के व्हाट इज के इज द नंबर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो ये याद रखना होगा तुम लोगों को कि ये जो इसका जो ट्रेस होता है वो होता है नंबर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है, एज के लिए, क्योंकि देखो सब धीरे धीरे काम पे आ जाएगा, ठीक है, एक एक करके टर्म। अभी देखते हैं रेसिडुअल क्या है। हम बहुत जल्दी इसको कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसका नोट लिख लिया है, तुम लोग इसको थोड़ा एक बार देखोगे तो इसका जो फॉर्मुलेशन है, जितना भी फॉर्मूलास है तुम लोग ले लो, क्योंकि ये काम पे आ जाएगा ये फॉर्मूलास, ठीक है। ये जो रेसिडुअल्स है, ये रेसिडुअल क्या है, y माइनस वाई है, तो इजीली है, ये इजीली लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे मैंने डाला है y हैट की जगह xb के जगह जो b है, b के जगह लिखा है o वाला टर्म, b का जो आया था बीटा हैट का जो वैल्यू OLSC से, अभी उसके जगह मैंने फिर से ट्रांसफॉर्म करके h डाला है इधर, h का वैल्यू ये है। ओके फाइन, इज दैट क्लियर? सो नाउ वी आर हैविंग i माइनस h इंटू y। सो व्हाट इज रेसिडुअल? रेसिडुअल के वैल्यू है i माइनस h इंटू y। So now we are writing i minus h equals to h dash, ठीक है, h bar, okay, h bar. So we are writing h bar equals to i minus h. So ये भी अच्छे से याद रखना, h bar equals to i minus h होगा, ठीक है। So obviously since h is a symmetry matrix, h bar also is a symmetry matrix. Since h is a idempotent matrix, h bar is also idempotent matrix. as same चीज है, देख लो मैंने किया है ऐसे रफ करके, रफ में लिख रहा था ऐसे करके, i माइनस एच इंटू आई माइनस एच, तो मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर भी आई आएगा, ए स्क्वायर भी एच आएगा, तो ऑफकोर्स एच का दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ई भी होगा। और ट्रेस ऑफ एच बार जो है वो होगा
n माइनस के, देखो कैसे आ रहा है, ट्रेस ऑफ i माइनस एच, तो ये भी लीनियर का फॉर्मूला है, ट्रेस ऑफ i माइनस ट्रेस ऑफ एच। द थिंग इज, तुम लोगों को आई थिंक रिग्रेशन का एनोवा पता है ना, तुम लोग को एडवांस चीजें तुम लोगों को पता होता है ना, राइट। तो रिग्रेशन का एनोवा में मैंने क्यों इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया, रिग्रेशन के एनोवा में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ना, जो एरर टर्म का कितना होता है, n माइनस के होता है, याद है ना, n माइनस के होता है क्या, Yes, sir. राइट। सो n माइनस के क्यों होता है, क्योंकि ये देखो, ये किसका कर रहे थे हम लोग, रेसिडुअल कर रहे थे, राइट, रेसिडुअल का कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए n माइनस के आता है, ठीक है। तो सब धीरे धीरे बाद में आएंगे फिर से, ओके फाइन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेशन एरर of b. So what is the estimation error of b? That is b minus beta. That is the estimation error of b, right? So b सर वो minus beta हैट मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो सकता है ना, singular. सिंगुलर मतलब हो भी सकता है ना। अगर सिंगुलर होगा रिग्रेशन मॉडल में कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, हो सकता है ना इफेक्ट, नहीं, कौन सा अगर सिंगुलर सर, आई माइनस एच, एच एच हैट मैट्रिक्स, एच अगर कैसे सिंगुलर होगा, एक ही सिंगुलर, सिंगुलर हो जाएगा तो कोई डेटा का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। हाँ वही तो ना, रिग्रेशन मॉडल का प्रॉब्लम हो जाएगा। रिग्रेशन मॉडल देखो, अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा ये जो वैल्यू है x इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। हम्म, अच्छा, ये सिंगुलर मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए। एक से अगर ऑर्थोगोनल होगा तो ये सिंगुलर होगा। नहीं 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 नहीं, ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोगोनल छोड़ो। इसका इसका सिंगुलर होगा मतलब वो जीरो ही होगा, ऑल एक्स जीरो, यस सर, जीरो होना ऑल एक्स पड़ेगा। जीरो, ऑल एक्स जीरो, जिसका कोई वो जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसमें एक्स का कोई वैल्यूज नहीं रहेगा, है ना, तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। ओके फाइन, चलो अभी एस्टिमेशन एरर में बात कर रहे थे हम लोग, तो बी के जगह मैंने पुट कर लिया एक्स बार एक्स इनवर्स एक्स बार एक्स डैश वाई। तो अभी इस पे क्या करेंगे हम लोग, देखो y जो है ना, y की जगह लिखा है देखो एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, ये कहाँ से आया, ये जो मेन रिग्रेशन लाइन है उसी से हम लोग लिया है, मेन रिग्रेशन लाइन से। तो अभी इसको इवोल्यूट किया मैंने पूरा, थोड़ा बहुत करने के बाद ऐसा आ रहा है, देखो एक्स प्लस एक्स का इनवर्स एक्स डेक्स एप्सिलॉन। इसका मतलब एक्चुअली क्या है पता है, इसका मतलब है समेशन एक्स आई एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल में, है ना। मैंने क्या गलत लिखा है बताओ, ये होता क्या है ना सर, एक्चुअल में, मैंने जो इसके जगह पे जो ये लिखा है ये ठीक लिखा है, डिवाइड बाय लिखे हैं सर। हाँ, डिवाइड बाय एक्स समेशन एक्स स्क्वायर। मतलब in case you are having a simple linear regression model and you have to found the estimation error of bit b, and if you use this formula, is that okay for Yes. in case of simple linear regression? बताओ, क्या सर, सुनाई नहीं दे रहा है मेरा बात सुनाई नहीं दे रहा है? आ रही है। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि इफ यू आर हैविंग अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड इंस्टेड ऑफ, ये तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए है ना, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखा, ये जो टर्म साइड पे लिखा है ऐसे लिखा है मैंने टर्म को, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या कर रहे हैं, इसके जगह पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, और मैंने ये जो b माइनस बीटा, इसका मतलब एस्टिमेशन एरर ऑफ b, उसका वैल्यू मैंने ऐसे लिया है। ये क्या गलत लिया है या सही लिया है? अच्छा, एसएलआर के केस में तो यही हो जाएगा। यही होगा ना। तो ये फॉर्मूला मैंने पहले नहीं किया था, ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले, देखो तुम लोग नोट निकालो, ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, अभी मैंने इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम मल्टीपल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा,
उसका जो लीनियर वाला फॉर्म मतलब सिंपल लीनियर वाला जो फॉर्म है उसको हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो साइड में लिखे हैं, in case of simple linear regression we can use this formula where epsilon I equals to obviously yi minus yi hat, okay, उसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बायस इन दिस केस? इन दैट केस बायस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ b minus beta. So what is this value? Obviously that bias is expectation of bias is 0, ये 0 आ रहा है तो 0 ही होगा ना। तो इसी को लिया है इधर, हाँ ये वाला टर्म पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, सो होल टर्म इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, राइट। ठीक है ना, ये वाला पार्ट समझ में आ गया? बताओ समझ में आया है कि नहीं ये वाला टर्म? यस सर। ओके फाइन, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो तुम लोगों को पता ही है कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर द वेरिएंस एंड द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दे आर द कोवेरिएंस, राइट। तो वी कैन राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ b माइनस बीटा इंटू b माइनस बीटा डैश। तो इसके जगह पे हम लोग कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये आ रहा है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स डैश एक्स इनवर्स। तो याद करो, इफ यू आर हैविंग द कोवेरिएंस बिटवीन बीटा then that was sigma square by s x x, ये आ रहा था उस टाइम इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये था ना वेरिएंस का फॉर्मूला। तो वही इधर से लिखा है मैंने, देखो इधर से वही लिखा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मैंने उसको सिंपलीफाई करके सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का टर्म में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तुम लोगों को, थोड़ा देखो। और कुछ नहीं है, जस्ट इसमें कैलकुलेशन करने वाले जस्ट मैंने इसके जगह पे इंपुट किया वैल्यूज को और उसको ले लिया इधर, ठीक है। और नेक्स्ट वाला टर्म जो है सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेशन, मतलब सिग्मा स्क्वायर जो है उसका एस्टिमेशन क्या कैसे होगा। तो इसके लिए अभी हम लोग एनोवा पे घुस जा रहे हैं, एनोवा में। तो एनोवा जाने से पहले थोड़ा सिग्मा स्क्वायर का जो होता है एस्टिमेशन देख लो। तो उसका एस्टिमेशन मतलब क्या है? उसका एस्टिमेशन मतलब होता है कि जो रेसिडुअल है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, उसी को निकालना होता है। तो व्हाट इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स? दैट इज द समेशन इप्सिलॉन आई स्क्वायर, दैट इज द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। सो वी कैन राइट e dash e, so from here we can write y minus xb transpose into y minus xb। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके जगह पे हम लोग ये वाला टर्म लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? देखो साइड में देखो, मैंने कर दिया है ऐसे, y माइनस एक्स बी दैट इज इक्वल्स टू एच डैश वाई। कहाँ से आ रहा था पहले देखो, मैंने पहले किया था एक जगह पे, ये देखो y माइनस एक्स बी दैट इज इक्वल्स टू एच डैश वाई किया था मैंने इधर। क्या बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अभी तक गेट में नहीं है इसका मतलब नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है ये सब चीजें। बताओ तुम लोग, सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है ना? हाँ अच्छे से देख लो ये सब चीजें, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कभी भी नहीं आएगा, कभी आ सकता है ये सब चीजें, ठीक है। तो इसका जो पैड वैल्यू पे पढ़ा रहे थे लिख लिख के तो ज्यादा सही रहा, ऐसे थोड़ा हाँ, क्योंकि वो नहीं है ना, ओवरऑल हो जा मतलब रहा है। इतना लैग हो रहा था ना, इतना लैग हो रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि अभी यही है, बाकी यही है मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, ये तो खत्म हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। और उसमें तुम लोगों का समझ में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बार बार मुझे दिखना पड़ रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा छोड़ दिया इसको। तो कल से सही हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, चेंज कर लेंगे हम इसको, ठीक है। ऐसे ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवरऑल हो जा रहा है। क्योंकि मैंने आज ना इतना कुछ कवर कर दिया, मैंने सोचा था ये 2 दिन लग जाएगा, लेकिन आज लिख लिया ना, इसकी वजह से इतना जल्दी ये हो गया मेरे से। तो आई थिंक तुम लोग थोड़ा इसमें को देखना पड़ेगा फिर से, पूरा पहले से लास्ट तक तुम लोग थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है इसके अंदर, हाँ, तभी तुम लोग को थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट इसको आगे लेके चला गया इधर। तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना मेरे से एक बार, नहीं तो हम कल फिर से ये थोड़ा रिपीट करेंगे। और एक और चीज होगा, एक और चीज बाकी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा रिपीट करेंगे एक बार, हाँ ठीक है। तो
कुछ नहीं, ये सब डेरिवेशन है, ये सब डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जस्ट तुम लोग कैसे डेरिवेशन हो रहा है ये थोड़ा याद रखो, क्योंकि क्या करेगा ना, क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो सिंपल चीज है, सिंपल चीज जो होता है ना, उसी से क्वेश्चन होता है। वो लोग क्या करते हैं, जस्ट कुछ चीजें जैसे कि एजम्पशन चेंज कर दिया, तो अगर कोई एजम्पशन चेंज कर दिया ना, तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप से कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो वो जो चेंज होगा ना, बाकी सब चीज सेम होगा, जस्ट एक दो टर्म्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन होता है, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये सब। तो मैंने जो किया ना, यस बहुत सर। इजी है ये, देखो। ये जो टर्म लिखा है ना मैंने, जैसे कि मैंने तुमको बोल रहा था कि y माइनस एक्स बी को मैंने एक्सटेंड किया है एच डैश वाई से, तो उसी को लिखा है इधर i माइनस एच इंटू वाई, इधर लिख लिया है। तो यही तो है एप्सिलॉन का वैल्यू। और सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेसिडुअल जो है, उसका वैल्यू मैंने देखो इधर लिखा है y डैश h बार y, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेसिडुअल। ओके, ये याद रखना, ठीक है। ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेसिडुअल। ओके, और ये इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, बिकॉज y कैन बी रिटन एज एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, उसका ट्रांसपोज इनटू h बार, एंड y का जो वैल्यू है एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी h डैश x इक्वल्स टू 0, कोई मुझे बताएगा h डैश x कैसे 0 हो सकते हैं? h डैश कहाँ पर है, देखो मैंने किया है इधर, h डैश यस x इक्वल्स सर, टू i i इंटू i माइनस एक्स हो h, जाएगा। हाँ, एच एक्स तो जो i है इंटू आपका, एक्स हो जाएगा, और एच ये एक्स जो एक्स टर्म है हो इसके जाएगा। साथ मल्टीप्लाई होके x बचा रहेगा, सिर्फ सिर्फ x रहेगा, हम्म, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये वाला टर्म। तो ऑब्वियसली ये टर्म बन जाएगा एप्सिलॉन डैश h एप्सिलॉन। सो एक्चुअल में इफ यू आर राइटिंग y डैश h y, क्रिटिकली सोचो, इफ यू आर राइटिंग h डैश h बार y, इट इज इट इसको देख के तुम लोगों को लगता है कि ये जो रेसिडुअल है ना, इस रेसिडुअल, इट इज डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व है। y मतलब क्या है, एक्स बीटा प्लस एक्स एप्सिलॉन, तो इसमें तो x इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि but if you consider this thing h bar into x equal to 0, after that the residual only depends on epsilon, that epsilon, right? तो पंकज ये थी, स्लाइड ऊपर कीजिएगा तो। बताओ इसमें कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है? समझ में आया ये पार्ट? यस सर। ठीक है, ओके फाइन। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, मैंने इस पर एक और कैलकुलेशन किया इस रेसिडुअल का, ठीक है। उसको जस्ट मैंने क्या किया, इसको मतलब साइड बाय साइड मैंने मल्टीप्लाई करते करते गया है, तो ऐसा भी आ रहा था, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग ऐसा फॉर्मूला रख सकते हो, ठीक है। ये भी काम पे आ सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि y डैश y का वैल्यू दे दिया, x डैश y का वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो उस टाइम इसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो साइड में। ओके फाइन। तो अभी हम लोग जाएंगे मॉडलिंग में, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है उसको हम देखेंगे। देखो चलो, एसिस रेसिडुअल का जो वैल्यू है वो क्या है, y डैश h बार y, ये है, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन दैट फॉलोस नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर i, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई नॉर्मल फॉलो कर रहा है एप्सिलॉन। सो वी हैव y, सो y क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल x बीटा एंड सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर तो सिग्मा स्क्वायर ही रह जाएगा, क्योंकि x बीटा कांस्टेंट है उसके इन टर्म्स ऑफ x सिग्मा स्क्वायर। तो y फॉलोज नॉर्मल x बीटा सिग्मा स्क्वायर। अभी तक क्लियर है ना ये वाला टर्म, y कैसे फॉलो हो रहा है नॉर्मल, ये तो क्लियर है। सो नाउ वी कैन हैव दिस थिंग y डैश h बार y बाय सिग्मा स्क्वायर दैट फॉलोज chi स्क्वायर इन माइनस k। ये दैट इज दैट फॉर, जैसा कि तुम लोग पहले भी किए थे सिंपल लीनियर इक्वेशन के टाइम पे, कि एस रेसिडुअल जो था डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर दैट फॉलोज chi स्क्वायर। ये भी तो chi स्क्वायर फॉलो किए थे, याद है ये वाला? क्या Yes, sir. याद है ना ये वाला टर्म?
तो अभी भी सेम चीज हम लोगों ने किया है, y डैश h बार y डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर दैट आल्सो फॉलोज chi स्क्वायर with degrees of freedom n minus k. In ये that case कैसे we have शो करेंगे सर? इसको प्रूफ कैसे? ये जो मैंने किया ना, देखो साइड में एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस दैट इज इक्वल्स टू ये आएगा नहीं n सर, minus y k to डैश sigma. h बार y कैसे chi स्क्वायर एन माइनस के फॉलो कर रहा है डायरेक्ट? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो y डैश h y है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक तो है। है, हाँ, y क्वाड्रेटिक फॉर्म स्क्वायर तो कर है। रहे हैं ना हम लोग। हाँ, और जो मतलब ये जो है ना, पहले हम लोग इसका प्रूफ है एक, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे, बट ऐसा है कि पहले क्या करते हैं, काइस को देखने के लिए इसको y को ना पहले ट्रांसफॉर्म करके एज डैश एज बार के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, so that we can have the quadratic formation and that quadratic formation will follow chi square. Okay, इसका एक प्रूफ है, ठीक है, वो मुझे याद नहीं है प्रूफ, ठीक है, देखना पड़ेगा, मिल जाएगा ये प्रूफ, कोई किसी न किसी बुक में होता है इस प्रूफ। जैसा कि मैंने जो किया था ना एसएस रेसिडुअल का प्रूफ किया था ना, ऐसा ही है ये एसएस रेसिडुअल बाय सिग्मा स्क्वायर, वो chi स्क्वायर प्रूफ किया था ना, याद है उसको कैसे हाँ, प्रूफ तो किया था? यूनिवेरिएट में तो ठीक है। हाँ, इसका भी है कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन फॉलो करते हैं इसको, ऐसे करके है कुछ, ठीक है, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है अभी वो थोड़ा चाहिए प्रूफ क्या तुमको? सर ठीक है, मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। वो तीनों एसएस रिग्रेशन का भी, रेजिडुअल्स का भी, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक काम करेंगे, तुम मुझे गेट तो में WhatsApp लिखा है ना, कर देना। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऐसे हेडिंग डाल के बोला है, सारे का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और कॉकरन सारे थ्योरम का पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो जो पढ़ना है ना, उसमें देखो, उसमें उसमें से उसमें क्या पढ़ने का बोला है, जितना भी तुम लोगों को एसएस रेसिडुअल एसएस रिग्रेशन जितना भी है, उसमें क्या उसका मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन, हाँ कोई प्रूफ नहीं तुमको पूछने वाला है, ये तो पक्का हाँ है, हाँ, ठीक है। वो तो है, बस रिजल्ट याद होना चाहिए। हाँ, रिजल्ट करके चलो, आ जाएगा, ठीक है। प्रूफ करके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, मतलब सच में, मतलब मुझे भी अगर कोई आके बोलेगा ना तुम इसका प्रूफ करके दिखाओ मुझे मेरे सामने, कर नहीं पाएंगे हम, सच, ये एकदम सीधा साधा बात है, ठीक है। ये मुझे कोई ऐसा फील भी नहीं होता कि ठीक है चलो प्रूफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हम लोग कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन लेंगे, जैसे कि आईएएस ले लिया या फिर आरबीआई का जो हाँ सर, डिस्क्रिप्टिव का उसको प्रिपरेशन भी होता है, देना ना, इसीलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहा है, एसएसआर बीआई दोनों देना है ना। हाँ उसी पॉइंट के लिए हो सकता है, लेकिन अगर तुम गेट का प्रिपरेशन ले रहे हो तो छोड़ो वो, मतलब हाँ वो आरबीआई के लिए होता है, आईएसएस में भी, लेकिन आईएसएस में मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है रिग्रेशन वाला, हाँ ये वाला पार्ट है, पेपर 3 में होगा ना ये वाला पार्ट, हाँ यस सर। हाँ पेपर 3 में अब होगा ये तो वाला काफी पार्ट। डीप में, अब तो काफी डीप में एडवांस टॉपिक ज्यादा पूछने लगा, इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल ये सब, हाँ ये साइमल्टेनियस सब हो गया, इक्वेशन। सब पुराना हो गया है उन लोगों के लिए। अब हाँ, एमएलआर उतना नहीं, वो रिलैक्स हेटेरोस्कैडेस्टी, ऑटो कोरिलेशन ये सब ज्यादा पूछता है। हाँ ये सबसे ज्यादा पूछता है, हाँ भाई दबा छोड़ो। तो ये जो हमारा था, इसमें क्या था कि ये chi स्क्वायर फॉलो करेगा ये वाला पार्ट, तो दोनों पार्ट chi स्क्वायर फॉलो करेगा, उसके बाद वो रिग्रेशन भी chi स्क्वायर फॉलो करेगा, एरर भी chi स्क्वायर फॉलो करेगा, उसके बाद हम लोग कैनोवा टेबल में जाएंगे तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट केस इज द गॉस मार्कअप थ्योरम, बट मैंने प्रूफ नहीं डाला इधर, ठीक है, सेम चीज मैं छोड़ दिया, क्योंकि इस इसका जो प्रॉपर्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट OLAC जो है that is the blue of beta. So if you are having a multiple linear regression model and you are estimating beta using ordinary least square estimation, that should be the blue, ठीक है, using the Gauss Markov theorem. मैंने लास्ट में थोड़ा कुछ चीजें ऐड किया है, ये छोड़ो, ये एमएलई बाद में देखेंगे। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट खास, ठीक है, एमएलई कर लेते हैं, बाद में ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये पहले बोल देते हैं, रिग्रेशन और एरर, देखो ये भी सेम चीज है। इफ यू आर हैविंग k number of regression coefficients, so regression degrees of freedom should be k-1, okay, and if you are having n is the n and k, so error is n-k, ये तो पहले देख लिया तुम लोगों ने कि excess residual by n-k that follows the chi-square distribution, so ये भी हो गया। और
दोनों क्या हो रहा है कि पहला जो टर्म है एस रिग्रेशन बाय k माइनस वन, दैट विल आल्सो फॉलो chi स्क्वायर विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम k माइनस वन, सो ऑब्वियसली दैट विल फॉलो f k माइनस वन एंड n माइनस k। ये मैंने लास्ट में लिखा नहीं है f का क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा k माइनस वन कॉमा n माइनस k, राइट। तो ये रिग्रेशन एनोवा हो गया। तो रिग्रेशन एनोवा से बहुत क्वेश्चन आता है। तो पिछले दिन मैंने आर स्क्वायर आई थिंक समझा दिया था तुम लोगों को, रेसिडुअल सॉरी कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन, उसका फॉर्मूला कैसे निकाल लेते हैं, 1 माइनस एस रिग्रेशन बाय एस टोटल, ये सब किया था ना पहले। हाँ, वो सब वो भी सेम चीज है, तो वो मैंने रिपीट नहीं किया था, ठीक है। चलो एमएलए में घुसते हैं, ठीक है। तो एमएलए ऑब्वियसली दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था कि लिस्ट का एस्टिमेशन किया, उसके बाद एमएलए में गया, क्योंकि हम लोगों को कंपेयर करना था दो एस्टिमेटर को। तो नाउ वी आर हैविंग एमएलए, सो हाउ वी कैन ऑब्टेन इट, द सिंपल थिंग इज द टू गेट द distribution of epsilon. So here obviously in the assumption we are getting that epsilon follows normal distribution with 0 and sigma square I. So from here we can obtain the distribution function, that is f epsilon I. So we have the PDF. So now we have the likelihood function। देखो सेम जो भी था सेम ही है, इधर कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस कहाँ से हो रहा है, इधर से। सो epsilon डैश पर तो हमने लिखा है epsilon डैश और epsilon into epsilon। So now instead of writing epsilon we are writing y minus x beta, ठीक है। epsilon की जगह लिख लिया क्या, y minus x beta। so y minus x beta, so we are having it and then log लिया है, ठीक है, both side। तो जो था ये पहला वाला टर्म आ जाएगा, दूसरा वाला टर्म सेम ही था, जो भी है एमएलए में वो उधर था, इधर भी सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किया है, वो सेम चीज है। जो देखो बीटा के इसके डेरिवेटिव करेंगे तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा और दूसरा वाला टर्म में बीटा रह जाएगा ना, तो y माइनस एक्स बीटा, और x बीटा के साथ x है, पहला जो बीटा है तो वो x ट्रांसपोज हो जाएगा। तो और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x डैश y इक्वल्स टू x डैश x बीटा। तो ये भी डेरिवेटिव करो इसको थोड़ा एक बार, ठीक है। इसको मैंने किया था पता है, मैंने क्या किया था, इसको मैंने ना थोड़ा ब्रेक किया था, ठीक है। ब्रेक किया था मतलब y डैश y OLS में किया वो था, ब्रेक करो। हाँ हाँ, OLS के वो टाइम ब्रेक करो। यस सर, वो ब्रेक करने में इजी हो जाता है ये टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म। और सिग्मा स्क्वायर का भी ऐसा मिल सकता है, ऐसा करोगे तो सिग्मा स्क्वायर का भी ऐसा इमिली मिल जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर इमिली है। तो बाय द वे द थिंग इज दैट वी हैव बीटा हेड एंड सिग्मा स्क्वायर हेड, ओके। ये जो वैल्यूज है ये तुम लोग निकाल पाओगे, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू कंपैरिजन ऑफ किसी को मैंने इधर ऐड किया है, देखो ये 3 बहुत अच्छे से याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। ओएलएसी एंड एमएलई में दोनों में बीटा सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बीटा आर सेम, ओके। उधर भी था, एलएसी में था ना, सेम था ना बीटा। यस सर, बस सिग्मा स्क्वायर डिफरेंस था। हाँ, ओके फाइन। हाँ, सो अभी ये जो एमएलई ऑफ बीटा, दैट इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, ये भी याद रखना, ठीक है। ये सब पॉइंट थोड़ा करके याद रख लेना, ठीक है। ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, लेकिन उधर जो था सिग्मा स्क्वायर नहीं था ना, सिग्मा स्क्वायर, इधर भी सेम चीज है, सिग्मा स्क्वायर बायस एस्टिमेटर है, ओके। एंड दैट इज द वैल्यू, ये भी सेम ही है ना। उधर n-2 कुछ था, ऐसा कुछ था ना, n-2 इधर k हो गया। तो अभी इसको में ये सब चीज मैंने इधर लिख ऐड करके रखा था। इधर तक मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है। देखो अभी मल्टीपल लिनियरिटी, हेटेरोस्केडस्टिसिटी, ये सब मॉडल एक्यूरेसी चेकिंग जो होता है ना, ये सब गेट का सिलेबस में है नहीं, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस में गेट का हाँ सिलेबस में है नहीं। तुम लोग अगर कोई ये तो एकदम सीधा साधा बात है, अगर पूछना चाहोगे कोई भी टॉपिक्स तुम बताओ, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर देंगे, उसके बारे में, ठीक है। और क्लास लेना है इसका क्या, और लेना है क्लास, मतलब नहीं, एक तो गेट का जो कॉकरन थ्योरम है ना सर, कॉकरन थ्योरम। हाँ, कॉकरन थ्योरम है, वो भी करेंगे। हाँ, कॉकरन थ्योरम, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भी डिस्कस करना है, वो एक टर्म्स वो भी
करना बाकी है, ठीक है, वो भी करते हैं, ठीक है, वो भी तो चाहिए। हाँ ठीक है, सर वो कल कर क्वेश्चन आज लेंगे। डिस्कस होगा कि कल होगा? हाँ कल करते हैं, चलो कल कर लेते हैं, ठीक है। वो जो क्वेश्चन था गेट का। हाँ कर लो गेट का क्वेश्चन, और अगर तुम्हारा दिमाग में और भी कोई एग्जाम के बहुत सारा जगह से, देखो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, जो गेट का जो क्वेश्चन बनता है ना, देखो सिंपल बात है, जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, वो कोई बड़ा जादू नहीं करता है कि बहुत हाई फाई सेक्शन, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम होता है इंडिया में, ठीक है, जैसा कि पीएचडी का एंट्रेंस होता है, जैसा कि तुम बॉम्बे आईआईटी में पीएचडी का एंट्रेंस हो गया, आईआईटी कानपुर का एंट्रेंस हो गया, वो सब वेबसाइट में जाओ, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है, वैसा वेबसाइट में जाओ, वैसे तुम लोग को एक कैसे कोई भी मिलेगा वो क्वेश्चन सबका? का सैंपल क्वेश्चन मिल जाएगा। वेट वेट, हम बोल रहे हैं तुमको, बोल साइट रहे, पे? सिंपल गूगल में सर्च करो, सुनो कहाँ मिलता है, सिंपल गूगल में सर्च करो पीएचडी एडमिशन आईआईटी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स, तो उसी डिपार्टमेंट में तुमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, मिल सकता है अगर रहेगा तो, ठीक है। ऐसा 2-3 जगह से तुम लोगों को धीरे धीरे, अगर मेरे पास भी आ गया, तुम लोगों को भेज देंगे हम, ठीक है, मेरे पास है, एक दिन बैठ के देखना, खुद ढूंढना पड़ेगा, बहुत जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, तो आप जो भी पीएचडी का एंट्रेंस का जो क्वेश्चन होता है, एमएससी का नहीं, एमएससी का वो हो गया है हम लोगों का, ठीक है, वो बहुत ईजी होता है, उसका नहीं, पीएचडी का, ठीक है। उसी सब जगह से ना जो भी क्वेश्चन है, अगर डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर एमसीक्यू होगा, जो भी क्वेश्चन है कलेक्ट करो, तो सर वो सब ठीक है। आईएसएस तुम आरबीआई लोग पूछते हैं? देखो सिलेबस हम लोगों का सेम ही है ना, सिलेबस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं। तो जो भी है क्वेश्चन का सेम लेवल अलग अलग है है ना। बस। तो जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, चलो हाँ, हो सकता अलग अलग है, लेकिन तुम लोगों को एक आइडिया होना चाहिए, जे अगर ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा, मतलब एग्जाम में यस बैठ सर। के ब्लैंक मत होना, ठीक है। एग्जाम में बैठ के ना ब्लैंक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है ना, तो ये हम लोग को थोड़ा 2-3 मिनट सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसा हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेटर, और या फिर एमएलई, तुमको आइडिया नहीं था ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आया है, कोई रिसर्चर ने पब्लिश किया था 3-4 साल पहले, वही डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ के दे दिया तुम लोगों को, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा, कोई शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल, शिफ्टेड नॉर्मल, या फिर डबल, मतलब कोई भी कुछ दे दिया, ठीक है, ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस दे दिया, ट्रंकेटेड, पता है ना ट्रंकेटेड क्या होता है, ट्रंकेटेड मॉडल्स। यस सर। हाँ, तो अगर दे दिया तो कैसे करोगे, तो इसके लिए ना थोड़ा सोचना होगा, वो 2-3 मिनट टाइम तुमको मिलेगा, उसी में सोच के करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मॉक टेस्ट में तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम बहुत डिफिकल्ट कर देंगे मॉक टेस्ट को, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके सर आपने नेट भी दिया है? नेट हाँ, नेट एग्जाम आपने दिया है क्या? तो मैंने नेट एग्जाम उतना मतलब दिया था कैजुअली, क्योंकि उतना डीप से नहीं दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा जो स्टैटिस्टिक्स है ना, हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स है, हाँ। और नेट में क्या होता है, नेट एग्जाम में जब तुम बैठोगे ना, उसमें क्या होगा, तुम लोगों को कॉम्पीट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का लोगों से, ठीक है। यस सर, तुम मैथ्स लोग बहुत ज्यादा है। जीआरएफ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं नेट है, में तुम मैथ लोगों को मैथ ठीक एनालिसिस, ठाक है। हाँ हाँ हो जाएगा, वो तो क्लियर तो हो ही जाएगा, बात ऐसा नहीं है। मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एक बार ही दिया था मैंने, वो क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम, जस्ट नेट हुआ था, जेआरएफ से मिला, तो जेआरएफ नहीं होने का फायदा नहीं होता है ना। नेट में क्या होता है, सिर्फ तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई आईआईटी में एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम उसमें फेलोशिप तो नहीं मिलेगा ना, जेआरएफ नहीं होगा तो जेआरएफ के लिए पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना सर तुम ज्यादा लोगों को, बेटर है कि गेट? देखो ये डाउट में मत फंसो, मतलब कौन सा बेटर है, एग्जाम देते रहो, जो क्लियर होगा वही अच्छा है तुम लोगों के लिए, है ना, जो भी क्लियर होगा सही है, ओके। ठीक है। मतलब तुम लोग एग्जाम की जब बैठ रहे हो ना, तुम लोग सोचना मत ये कौन सा एग्जाम है, क्वेश्चन मिला है सॉल्व करो, बस देखा जाएगा जो होगा, समझ रहे हो ना। तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोग थोड़ा
स्टैट पर तो होगा ही, इधर से हो ही रहा है। और जो लीनियर अलजेब्रा आई थिंक हो रहा है, लीनियर अलजेब्रा ये सब भी हो रहा है आई थिंक। ये सब पोर्शन लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डीप में, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, यस सर, ठीक है, जो गेट काफी में नहीं डीप में चाहिए हम क्वेश्चन, लोग। नेट में काफी डीप में क्वेश्चन पूछता है, चाहे हाँ हाँ, स्टैट्स हो चाहे मैथ हो। थियोरेटिकल आता है, थियोरेटिकल आता है बहुत, है ना? गेट से टफ आता है क्वेश्चन। टफ नहीं होता है, वो थियोरेटिकल होता है। गेट में न्यूमेरिकल ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका वो एप्लीकेशन, गेट का मतलब ये था कि एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और नेट का है थियोरेटिकल बेस्ड, क्योंकि नेट से यूज करके लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। और गेट से लोग मेनली जाता है पीएसयू वगैरह में, लोग ज्यादा जाते हैं ना। तो गेट बहुत एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है, और नेट में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देता है। ये दिनों का फंड है। अभी गेट स्टैटिस्टिक्स में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आने लगा है, तो फिर सर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, हाँ, ओके हम लोग थैंक यू। ओके सबके सर, कल लोग कल गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी जो भी है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, फोग्रान फोग्रान वो भी कर देंगे कल, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू।